Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and we'll be picking up important themes and ideas which are very relevant to your everyday understanding. We try not to repeat the same topics. We also try to bring as many diverse elements as possible, and the whole process is to be enjoyed. And your vocabulary must rise so that you can write answers, and you can also make sure that every time when you are sitting again in a day's time, week's time, or even in a month's time, your level is increasing. First topic is about AI plane crash, how DNA analysis is used to identify victims. The key element here is that there are two aspects of it. One is the aspect of procedures, that in such complex circumstances, how one is able to segregate and one is able to identify. Second aspect is of DNA analysis itself. That what is DNA analysis? So when if you really want to know the unique DNA is there in everybody, in every individual, it is the gold standard for identifying human remains, especially after certain tragedies or fatalities. So DNA begins to degrade. Degradation makes it difficult, but DNA survives much better in the cold and dry conditions, not in the hot and humid conditions. So it is true that the DNA is degrading from the softer tissues faster than the harder ones. Even in case of complete burning, there are bones, and even the hardest substance like teeth is there. So that is used to identify. But here, two examples are given: short tandem repeat analysis, which is essentially short repeating sequences of DNA, and second system is mitochondria DNA, mitochondrial DNA analysis. This method is used when nuclear DNA is degraded or unavailable. The mitochondrial DNA is found within the cell's energy producing organelle is known as mitochondria. As mitochondrial DNA is present in multiple copies within the cell, it is easier to recover from human remains that are not well preserved. So more difficult circumstances. Then you have Y chromosome analysis, that you have X and Y. So you will be able to identify biological male and female. Similarly, single nucleotide polymorphisms, that is SNP analysis is there. It is in case of highly degraded. So we must know in all the four, there are four analysis systems, and you must note it down because it can be linked with the general studies paper 3 when we speak about disaster management, and also in ethics case studies, or even an answers you can somewhere put in. Your understanding will be important, and obviously for the prelims it is an important element. Moving further, when we say what is happening in the Middle East, we have been talking about it. So it is not a one day thing. Israel has the capabilities to keep up strikes on Iran. That is true. Idea is to make Iran as weak as possible, but on the other side, other Gulf states and other Middle East countries, they are standing with Iran in spite of having their differences with them. And on the top of it, Iran is not ready to give up its nuclear weapon program or nuclear enrichment program because it believes it is very important for its security. It has the right to do so. And US is indirectly or directly supporting Israel, but then on the other hand, Israel is also going beyond the means. Israel is also going beyond the way, and there are two aspects of it. That's what we are saying. So Iran is having very stark choices. It is not having much opportunities because for the long time, European countries, Britain, France, Germany, they have been also discussing the nuclear deal with Iran. It didn't happen. Now the president Trump is actually pushing it much more further. Houthis are also maintaining their ceasefire with the United States. So situation is precarious, but can it be really bringing peace for the whole region? It is very difficult, and it is very unlikely that the Iran is going to close the Strait of Hormuz, and even it is going to attack the US forces in Iraq and in the rest of the region. So the Arab states, they are also having a very important role to play, and oil and shipping and trade and energy ecosystem is also very important. What role India can play? You can just think of India as a good friend with both the countries and having a strategic relationship with Israel also. But then we have to see that Israel is a supporter and also one of the largest defense provider to India, whereas for Israel the same is case with US. So from that perspective, you have to think what India role is to be there. Then, if you see in context of why Punjab is struggling to diversify from paddy, it is all about awareness. It is all about the role of Krishi Vigyan Kendra. It is all about uh, what are the aspirations and how the social ecosystem is.
So attempt at diversification, they have many times they have failed. Monoculture cropping is there, especially basmati and wheat, I should say. So paddy is the king because it is going to give much more money, and there is a guaranteed procurement at minimum support price. And the situation is the product of the decades of flawed policy makers, because you are using water, you are using fertilizers, and so on. So as an agriculture secretary, again, if you are given the charge of Punjab only, what two things you're gonna do? What two ideas you're gonna put up? Please write back. Sentence rationale behind MGNE REGS capping cap and the concerns with it. Government of India, it has come up with one of the brilliant plans for employment generation at a basic level by Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. But the spending limit is now capped. So the civil society groups and others, they are raising the issue. Why? Because the finance ministry rationale is that it is going to address other kind of issues, because data from the Ministry of Rural Development shows that more than 70% of budget is frequently exhausted by September, and while supplementary allocations are often made in December, even run out by January. So this leaves significant pending dues by the end of financial year, and that is why whole system gets little haywire. Implementing an expenditure cap by the financial ministry is likely ensuring an adequate budget for the later half of the financial year, so that no supplementary allocation will have to be made. So 86,000 crores just clearing existing dues will exhaust roughly half of the budget, and the demand is also fluctuating. And secondly, we have to find out the bogus, the bogus and also fake payments, because whether it is PM Kisan Samman Nidhi or the LPG scheme, we have seen examples of Maharashtra where the fake invoices were generated. So the question is, whether it is the public distribution system, whether it is MG Narega, there has to be a more robust digital and also other kind of systems. And even if you are going to take it to the constitutional court, then they have held that the financial inability cannot be reason to disregard statutory or constitutional duties. ऐसा बहुत सारे केसेस में बताया गया, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है. So currently there is no clarity. अगर सीलिंग पहुंच जाएगी तो क्या होगा? State could be forced to deny employment even when there is demand. But in both the scenarios, the statutory rights of the workers can be violated अगर उन्हें right to receive employment within the 15 days of raising the demand अगर नहीं मिलता है. So I'm sure government and the whole ecosystem and the bureaucracy, they will be going to put a meaningful and a very scientific approach into it. And it will be this idea that you can say, which is going to be very much helpful and very much what we can say proactive approach, if I use a word with this. So we can't say that aisa nahi hoga, but then we have to see that what further can be done. Alternative nationalism, when we say, for the centuries we are talking about, society has been characterized by the unself-conscious pluralism of religion. Unself-conscious pluralism of religions, इसका मतलब है कि आपका अपना धर्म है, आपके अपने विचार हैं, आपके अपना जीवन है, लेकिन फिर भी आप अनेकता में बिलीव करते हो, फिर भी आप सारी चीज देखकर चलते हो. और गांधी जी की जो इनोवेटिव थिंकिंग थी गवर्नेंस में, हाईली डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम उन्होंने कहा था, उसको भी आप देखते हो, तो आप देखते हो कि इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मीनिंग. सो योगेंद्र यादव जी ने लिखा था द नेशनलिज्म वी फॉरगॉट, तो उन्होंने भी इन्हीं बातों की चर्चा की थी. तो इन्होंने इसी बात को करंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म की उन्होंने चर्चा की थी कि कैसे इंडियन सिटीजन जो है अपने राइट्स को अगर अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि सबका राइट है दूसरे को पूर्ण रूप से जागृत रूप से रहने का अधिकार देना, चाहे फिर वो भारत के किसी भी पार्ट की बात हो. आप क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन आप अपने ही लोगों को जो लेगेसी है फ्रीडम की, चाहे फिर वो सोच है, उसको आप किसी भी कॉस्ट पे दबने मत दीजिए. सो लेकिन अब किस प्रकार के नेशनलिज्म की बात है, तो उन्होंने चर्चा की थी, उन्होंने डिबेट किया था कि कैसे अब जो है एक कहना चाहिए कि एक तरीके का सेंसेशनल, एक तरीके का पैरोकियल, एक तरीके का मायोपिक एक व्यू पॉइंट लेके आया जाता है. टॉलरेंस कम हो गई है, और मॉडर्न सोसाइटी जो कि रेशनलिज्म, ह्यूमैनिटी, इंपेरिसिज्म पे डिपेंडेंट है, इंपेरिसिज्म के विचारों पे, वहां पर भी आप एक मोनार्किकल स्ट्रक्चर, वहां पर भी आप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं जो कि इनविजिबल है,
और आप रिलीजियस और कल्चरल इथोस को एक पर्टिकुलर रिलीजन के उससे पुश करते हैं, तो फिर भारत जो है वो ऐसा बड़ा राष्ट्र नहीं बन पाएगा जिसकी हम बात करते हैं। क्योंकि नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज जो मेजिटोरियन कम्युनिटी है उसके सिर्फ विचारों पर नहीं हो सकती है, ऐसा आर्टिकल का दावा है। क्योंकि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको अगर आप पीछे छोड़ेंगे, उसको अगर आप बैकलैश करेंगे, तो फिर आप कैसे चीजों को कर पाएंगे, कैसे आप स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे आप उसको कर पाएंगे। तो सेकुलरिज्म के कई आयाम हैं। भारत एक पेडागोगी से गुजर रहा है, और जो हमें कहना चाहिए कि जो सरकारें, जो गवर्नमेंट सिस्टम वाज देयर टिल द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग पड़ाव था। अब एक नया पड़ाव है, तो सिस्टम फ्लिप हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है, सिस्टम फॉर बेटर भी कह सकते हो आप। अगर आप नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो हमने क्वेश्चन में लिखा भी है मेंस के, क्या गांधी जी ने जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिलाया तो क्या उन्होंने सही किया था। तो वही बात है कि हिंदुत्व नेशनलिज्म जो है वो कोर है, उसके एलिमेंट्स हैं इंडियन नेशनलिज्म में भी, आप देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि सबको आप मिलाकर ही आगे बढ़ पाएंगे। तो दैट इज वाई एक्सटर्नल एनिमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम खत्म करें। लेकिन भारत के जो इंटरनल चैलेंजेस है, इंटरनल एनिमी है, जिसमें भारत के सारे भाग एक हो, भारत के सब लोग एक हो, हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, हम एक दूसरे के प्रति एम्पैथी का प्रैक्टिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Coming back to the other very important, after Operation Sindoor, a collective duty, it is what Shamika Ravi is talking about. Shift towards technological self-reliance and state-led innovation, जो दो कीवर्ड हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रिलायंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसके कई मतलब हैं। जो टेक्नोलॉजिकल रिलायंस है वो आपके पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपके खुद की डेली लाइफ में, आपके जो यूपीआई से लेकर बाकी टूल्स जो मैंने बोला वो हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वो लिखने से हो पाएगा? क्या R&D, जब तक जीडीपी का पोर्शन नहीं बढ़ेगा, जब तक प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब तक एक सस्टेन्ड लीडरशिप नहीं मिलेगी, जब तक आप किसी को इंस्पायर नहीं करेंगे, तो कैसे हो पाएगा? सिर्फ ये बोलने से कि स्ट्रेटेजिक और कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप चाहिए गवर्नमेंट, एकेडमी, इंस्टीट्यूट और प्राइवेट सेक्टर की, ये नहीं है। उसके अंदर भी हमें देखना होगा कि उसके अंदर भी कौन लीडर्स हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस चीज को मदद करा रहे हैं। उसके बिना आप नहीं कह सकते कि हम इसको पा पाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो यूपीएससी का जो आंसर या जो हमारी सोच है वो इस दिशा में यहाँ से ज्यादा फैक्ट्स नहीं निकाल पाएगी। हमें देखना होगा कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको हम वाकई सेल्फ रिलायंट बना पाएंगे। टूरिज्म कहाँ पर बनेगा, कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ पर बनेगी, टेक्सटाइल कहाँ पर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर बनेगी, सेमीकंडक्टर किधर है, ये सारी चीजें हमें बहुत। और उसके बाद जो है आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर, टैक्सेशन, इन सब की बात भी करेंगे, तो इट्स ओवरऑल थिंकिंग। लेकिन इससे हमें एग्जामिनेशन प्रोसेस से कोई ऑब्जेक्टिविटी के साथ सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो वो आपको खुद एक शॉर्ट नोट में लिखना होगा। मैंने पहले भी चर्चा की है कि कैसे रीआर्मिंग ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट अब एक फैक्टर हो गया है। अमेरिका का जो चर्निंग है वो अब अमेरिका वैसा नहीं रहेगा। चाइना ऑब्वियसली इज हैविंग ए अपर हैंड, अगर आप सारी चीज को बराबर तौर पे देखते हैं। तो इंडिया की जो विजिट है साइप्रस, क्रोएशिया और यूरोपियन यूनियन के जो बाकी भी नेशंस आपके G7 में भी प्रधानमंत्री साहब से मिलेंगे। तो पॉइंट यही है कि इंडिया एक्सपोर्ट और जॉइंट रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज को कैसे बनाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे बनाए, बस आप इसको, ये एलिमेंट आपको लेना है कि कैसे हम फ्रांस के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा वो करें, कैसे हम बाकी जो यूरोपियन नेशन है, इवन यूके के साथ हम करें। फॉर एग्जाम्पल एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हम भी उनको दे सकते हैं। और रडार्स भी हम नाटो के स्टैंडर्ड्स के हमारे हैं, और हम उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। हम उनके साथ भी टेक्नोलॉजिकल और बाकी जो मुझे कहना चाहिए जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का है या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, क्वांटम बायोटेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, वहां पर भी हम आप कहना चाहिए कि हम यूरोप के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बना सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस जो ऑमनिबस पैकेज है वो इंडिया के लिए एक चांस है कोलैबोरेट करने के लिए, इंडिया की एक चांस है एक अपने आप को आगे बढ़ाकर करने के लिए, वो हमें करना चाहिए। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे इंडस एक्स जो विद द यूएस, इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए। लेकिन पॉइंट यही है कि ईयू डिफेंस इनोवेशन स्कीम जो है, EUDIS जिसको आप कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आई थिंक कुछ कीवर्ड्स हमें यहाँ से देने होंगे और हमें पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। साइप्रस टर्की की मैंने बात अभी आपसे की, वो हमने कल भी चर्चा की थी। उन्होंने वहां पहुंचे, साइप्रस मैटर करता है जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि साइप्रस जो है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है।
आइलैंड कंट्री है जिसका डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट है टर्की के साथ। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और इंडिया का साइप्रस का जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, वो भी वो स्टैंड है जो इंडिया चाहता है और जो जेन्युइन स्टैंड है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट भी साइप्रस बात करते हैं। दूसरा, इस्लामाबाद अंकारा के साथ अलाइन होना चाहता है और दोनों में एक बोनहोमी है। लेकिन जो साइप्रस है, साइप्रस अभी ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी उनके पास आएगी, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। साइप्रस इज अ क्लोज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड फॉर इंडिया, और इंडिया भी जो है साइप्रस को किसी भी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट और टैक्स हेवन बनाने में विश्वास नहीं रखता। मूविंग फर्दर, महाराष्ट्र पंचायत अडॉप्ट्स ई ऑफिस सिस्टम। बस ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कैसे आम जीवन में फर्क आएगा। फर्स्ट विलेज इन पंचायत इन द कंट्री, रोहिणी, लोकेटेड इन महाराष्ट्र धुले डिस्ट्रिक्ट, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि ई ऑफिस सिस्टम अप्लाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। जो धुले जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं विशाल नरवाड़े जी, उन्होंने इसको शुरुआत कराया। तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल चेंज। तो आप ये कहिए कि पेसा ग्राम पुरस्कार जब उसे मिला, तो वही बात है, पंचायत यानी एक्सटेंडेड शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 ऑल्सो नोन एज पेसा एक्ट, तो पंचायत की पॉपुलेशन 7200 है, और वो अब कैसे अपने सिविक और अपने बाकी कार्यों को कितनी आसानी से करा पाएंगे बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका ऊपर आर्टिकल में चर्चा की गई थी। मुझे समझ ये नहीं आया, ऊपर जो आर्टिकल लिखा गया था शमिका रवि के द्वारा, वो वहां पर इसका एग्जाम्पल लिख सकती थी शायद, अगर उन्हें इस बात का पता होता। तो पंचायत, उसकी अप्रोच भी दूसरी है खैर आर्टिकल की, मैं तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आई एम लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। पंचायत जो है वो 8 डिफरेंट टाइप्स के आईसीटी प्लेटफॉर्म यूज करेगा। उससे आप खुद ही देखिए कि उससे जीवन जो है कितना आसान हो जाएगा और कितनी चीजें उससे व्हाट आई कैन से कि इजीली होंगी। हेलो। तो क्वेश्चन अराइजेस कि आप अगर जो डिजिटल डेवलपमेंट है उसमें अगर आप की वर्ड्स लेके आते हैं, जैसे सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, पंचायत आईसीडी लैब फॉर डिजिटल लिटरेसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, मेरी पंचायत ऐप, ये आपको फील करना पड़ेगा, इनको आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाके इसका बेनिफिट हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट हाउ वी हैव टू सी। अब हम बात करते हैं ट्रैकिंग द मानसून। हमने रिवाइवल की बात की, हम तब से ट्रैक कर रहे हैं। ज्योग्राफी सीरीज में हमने मानसून मैकेनिज्म को भी डिटेल में समझा दिया। क्लाइमेट और जियो पॉलिटिकल शॉक, दो दो की वर्ड यहां पर आए। अगर कॉमोडिटी प्राइसेस कूल भी हो रहे हैं, आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। फर्स्ट आवर मानसून केम लिटिल अर्ली, फिर वो रुक गया, फिर अब वो आगे बढ़ गया। तो रेनफॉल पे क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर आप जब तक पूरे फिनोमेना को नहीं समझेंगे और उसके बाद आप आम आदमी से अलग सोचकर आप उसको आंसर में नहीं लेके आएंगे, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब नॉर्मल मानसून की बात हुई थी, नो, कोई एलिनो नहीं है इस बार। न्यूट्रल और वीक नेगेटिव इंडियन ओशियन की डाइपोल कंडीशंस हैं, दे आर डेवलपिंग ड्यूरिंग द सीजन। बोथ ओशियन इंडिकेटर्स नोन टू इन्फ्लुएंस द मानसून आर फेवरेबल। साउथ वेस्टर्ली जो विंड सिस्टम है दैट इज ब्रिंगिंग द रेन्स। तो पॉइंट वही है कि हमें सारे एलिमेंट्स को लेकर जनरल स्टडीज पेपर 3 के आंसर में हमें रिलेटिवली उसकी कहां पोजीशनिंग करते हैं, वो आपको पीटी और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिग्निटी की बात आज से हम 20-25 साल 30 साल से कर रहे हैं। द राइटर इज ए पीडब्ल्यूबीडी यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आई थिंक ए वेरी 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 appreciable step and must be getting into services also after some time. उन्होंने अपने विचार लिखे, उन्होंने कहा है कि यूपीएससी सर्विसेज में प्रीलिम्स हुआ, रिफॉर्म्स की बात हुई, एक्सपर्ट्स कमेंटेटर दे आर कॉलिंग फॉर चेंजेस सिलेबस पैटर्न, उन्होंने बात की। स्पेशली एक वॉइस जिसकी बात नहीं की गई, दैट इज एस्पिरेंट्स फ्रॉम पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी। सो she is talking, when I first considered appearing for the exam before 2015, orthopedically disabled aspirants like me were not even allowed scribes. आप विजुअल इंपेयर्ड को सिर्फ स्क्राइब मिलते थे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को स्क्राइब नहीं मिलेगा।
तो एमआर शीट के ऊपर भी धीरे धीरे गोला बना पाते थे। सी सैट क्वालिफाइंग है, लेकिन वही बात है, उनका कहना है कि उसमें भी अनस्पोकन बैरियर्स है, टाइम बाउंड रीजनिंग और न्यूमेरिक सी क्वेश्चन डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट दोज हु ड्यू टू इयर्स ऑफ जिनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, कैसे कर पाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम इज बैंडेड नॉट ए सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कैटेगरी में ही compete कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट जस्ट गेट वेरी ऑब्जेक्टिव विद दिस। यूपीएससी बिकम्स अ डेली नेगोशिएशन विद नेग्लेक्ट। वो अपना एग्जांपल दे रहे हैं कि आई ट्रेवल 30 to 40 किलोमीटर वन वे टू अटेंड क्लासेस ओनली टू रिटर्न होम फ्रॉम मेट्रो स्टेशंस वेयर द एलिवेटर्स आर मोस्टली आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसा मैं नहीं मानता, दिल्ली के केस में ऐसा नहीं है। अभी किस शहर में कोचिंग ले रहे हैं, इन्होंने क्या किया वो मैं नहीं जानता, और वैसे भी ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। I earned a research degree from a premier central government university, but I remain unemployed. That is obviously not just with you, but it is happening with the lower people also, higher people also। और हमारे स्टूडेंट्स को कौन सा बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही। सो हमें इस एंगल की जगह हमें ये देखना है कि हम चीजों को डिग्निटी के साथ और पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं, ना कि सिंपैथी और सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने के लिए हम नहीं सोच सकते। तो माय पॉइंट इज, जो एक्ट है और उसके बाद सरकार जैसे बात कर, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके पास कोई फिजिकली डिसेबल्ड आपके घर में कोई मेंबर है, तो हम उस मेंबर की केयर टेक करने के लिए भी आपको 5,000 रुपया देंगे। तो ये सोच तो आई, तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। पॉलिसी मेकर्स रिकैलिब्रेट इंडिया यूएस मार्केट एक्सेस स्ट्रेटेजी एज टैरिफ डिफरेंशियल विद चाइना नैरोज। तो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द नेट टैरिफ डिफरेंशियल विद इंडिया, और वो कर्व कैसे मूव करता है। अगर यूएस मार्केट एक्सेस में इंडिया और चाइना का जो टैरिफ डिफरेंशियल गैप है वो कम होता चला जाता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर दैट। हमें वो सोचना है कि आप मुझे ये बताइए 5 ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जिससे इंडिया और चाइना का जो टैरिफ डिफरेंशियल है वो गैप नैरोड हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू। उसके लिए सिर्फ आप रेयर अर्थ मैग्नेट्स और ये बातें बोल के एनडीएफबी की बात सिर्फ नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें। तो आप 4-5 ऐसे मुझे एरियाज बताइए कि जिसकी हम अगर चर्चा करें, जिसकी हम बात करें कि भाई कैसे यूएस और चाइना अपना जो कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया कैसे उसको कर सकता है, इंडिया कैसे जगह बना पाएगा। क्योंकि चाइना इज पुटिंग अ 6 month लिमिट ऑन रेयर अर्थ एंड मैग्नेट एक्सपोर्ट लाइसेंसेस फॉर यूएस ऑटो मेकर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। झटका वो देगा, तो इंडिया को मौका मिलेगा, लेकिन इंडिया उसके लिए तैयार भी तो होना चाहिए। आप सिर्फ पिटी करते रहोगे, आप सिर्फ सिंपैथी से करोगे, आप वे आउट ऑफ जाके काम नहीं करोगे, तो रिजल्ट भी फिर वैसे नहीं आएंगे। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको चाहता हूं कि आप ये देखिए कि कैसे इंडिया यूके एफटीए की बात है, इंडिया यूरोपियन यूनियन की बात है, इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज की बात है, इंडिया जापान की बात है, इंडिया चाइना की भी मैं बात करूंगा, तो आप हर जगह 2-2 पॉइंट क्या अलग लिखेंगे, ये सोचने वाली बात है। जीएसटी रेट ऑन सिन गुड्स एंड कार में इंक्रीज, ऑब्वियसली कंपनसेशन लेवी likely to go out in March 2026 ऑब्वियसली। सिन क्या होते हैं, सिन गुड्स क्या है, आपके एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, आपके टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इवन कार्स भी जो है वो सिन प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है सबके लिए। कार सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सबके लिए एक्सेसिबिलिटी जरूरी है। सबके लिए जब आप फैमिली को लेकर चलना चाहते हैं तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, वो अगर ढंग से नहीं होगा तो कार फिर जरूरी हो गई। दिस इज अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट। So currently the tax incidence on these items is the result of the combined effect of 28% slab rate, और यहाँ पर पूरा बताया गया है। रिमेनिंग 1% कम्स फ्रॉम द अदर बीइंग स्पेशल रेट बीइंग अप्लाइड ऑन गोल्ड एक्सेट्रा। तो जीएसटी काउंसिल अभी मिलेगी, फिर से रेट रेशनलाइजेशन पे बात करेगी, तो पीटी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर सारी फंक्शनिंग होती कैसे है। सो बात यही है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, दे में बेनिफिट फ्रॉम cessation of the compensation cess and the rate rationalization process। तो आपको पूरा जनरल स्टडीज पेपर 3 का जो इकोनॉमिक्स का एक एलिमेंट है, जिसके अंदर आपको पूरा पता होना चाहिए कि जीएसटी आया तो क्यों आया, और जीएसटी आने के बाद अब जो है क्या डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, और व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। दैट इज आई वुड से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन सेइंग। पीटी के लिए आप ये जरूर देख सकते हैं कि भाई जो जीएसटी सेस है कितने स्लैब में क्या चीज है, very objectively you can just google and find it। reforms on SEBI boards meeting agenda, definitely because it is an ongoing process। तो पाइपलाइन में क्या है, पाइपलाइन में क्या है कि आप रिक्लासिफाई करेंगे, आप रिक्लासिफाई करिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, या फिर केवाईसी नॉर्म्स हैं, या फिर आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उनको आप कैसे आप उनको राइट पर्सपेक्टिव में लेके आएंगे। इंक्रीजिंग म्यूचुअल फंड एक्सपोजर टू राइट्स एंड इन्विट्स, इजी कंप्लायंस होना चाहिए। एंड देन बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं कि कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करेंगे, कैसे आप
डीमर्जर की जो बात है, डीमर्जिंग ओनरशिप ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक एक्सचेंजेस, और रेगुलेशंस को आप कैसे टाइट करेंगे, मैकेनिज्म्स फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ पीएसयूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 3-4 फैक्टर अगर आप समझते हैं जब हम इकोनॉमिक को कवर कर रहे हैं, स्पेशली द कैपिटल मार्केट, देन डेफिनेटली मोर देन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे फिर वो मेंस हो। तो राफ्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन सेबी बोर्ड एजेंडा, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए भी, उनको राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए भी, और बाकी तो हम अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आएगा। एक्सपोर्टर्स फियर वॉर, डेफिनेटली नॉट जस्ट फियर, तो हमें ये देखना है कि सप्लाई रूट जो है वो, आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एटलस खोलिए, आप देखिए रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसके बाद जो है पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, सऊदी अरेबिया, इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसराइल से भी हमारा इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। मेन डेस्टिनेशंस फॉर ऑयल पासिंग बाय द स्ट्रेट इंक्लूड चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। एक्सपोर्ट देखिए आप, ईरान का कम वैसे ही था, इट इज अनचेंज्ड। इंपोर्ट फ्रॉम ईरान इज ऑल्सो ड्रॉपिंग अप। तो ऑब्वियसली आप कोने में धरती के एक पार्ट को बिल्कुल आप कुचल कर आप दूसरे पार्ट को अगर पावरफुल बना भी देंगे, तो कुल मिलाकर लास्ट में, अब मैं क्या कहूँ इसमें कि मतलब अब कौन सही है कौन गलत है, ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव एलिमेंट है। So everything depends on whether the conflict is localized or it is expanded to include other countries. Its impact will be first felt in the global crude oil prices. That is very, very important to understand. सीएजी प्लान्स रिमोट ऑडिटिंग, तो अब जब जनरल स्टडीज पेपर 2 में कैट के ऊपर क्वेश्चन आता है, जब बात की जाती है भाई कुछ इनोवेटिव बताओ, भाई आप बताओ कैसे होगा, तो रिमोट ऑडिटिंग विद स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज, enabling audits to be conducted without the physical presence of audit. This is revolutionary. Timely submission of state accounts data. Issue related to center sector schemes. Very important. CAG is introducing remote auditing, enabling audits to be conducted without physical. This is amazing. सो यही है आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं जो नई जनरेशन किस तरीके से चाहती है, और जुडिशियस एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आती है, तो उसमें इसको देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, डिजिटल फार्मर आईडीज, क्रॉप सर्वेज नाउ यूज्ड फॉर बेनिफिट ट्रांसफर, ऑब्वियसली। सो 43 मिलियन फार्मर्स की आईडीज जब लिंक कर दिए किसान किसान पीएम किसान स्कीम से, वो आपके जो है वो बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ जाएंगे। एग्री स्टैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मेंस में जनरल स्टडीज पेपर 3 और 2 और 4 के आंसर्स में आना चाहिए। डिजिटल आईडीज हैव बीन क्रिएटेड, मैंडेटरी है न्यू एप्लीकेंट्स के लिए पीएम किसान टू गेट डिजिटल आईडीज लिंक्ड विद देयर लैंड रिकॉर्ड्स। 90 million farmers are going to get direct cash benefits of 6,000 annually through these three equal installments. 8.6 million IDs have been generated. तो आप इसको सोचिए कि इसमें क्या लैकुनाज और चैलेंजेस आ सकते हैं। इसको कैसे आप, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, नॉर्थ ईस्ट है, आप कैसे करेंगे? तो सॉइल हेल्थ कार्ड्स यूजिंग फार्मर आईडी एंड जियो रेफरेंस विलेज मैप्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात में स्टार्ट किए जा चुके हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। डिजिटली जो है सारी चीजें 1 घंटे के अंदर अंदर आप दोबारा से रिविजिट करके कर सकते हैं। इवन प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स अंडर पीएम आशा by agencies like NAFED and NCCF have been identified, and farmers are growing अरहर and मसूर varieties of pulses using farmer registry। उससे बिल्कुल पता लग जाएगा आपने क्या उगाया, कितना आएगा, क्या करना है। तो इससे बचत भी होगी, इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और इससे जीवन में जो है फिर बदलाव भी आएंगे, और फार्मर सुसाइड्स एंड फार्मर जो हम इतना टॉर्चर झेलते हैं, उसमें भी जरूर डेफिनेटली कमी आने की बात है। हाउ इंश्योरेंस पे आउट्स टू एयर क्रैश विक्टिम्स आर डिटरमाइंड, तो वही है, इसमें अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, और फैमिलीज फाइल भी क्लेम कर सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि भाई ट्रैवल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे भी हैं। सो 1.5 करोड़ इंश्योरेंस पे आउट पर पैसेंजर्स, ये है एज पर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी है फॉर द पीपल ऑन द ग्राउंड, और फास्ट ट्रैकिंग भी होती है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिसको हमने आपको सिर्फ मोटा मोटा देखना है, और आपको कीवर्ड पता होने चाहिए कि कौन सी कंपनी कैसे क्या इन्वॉल्व है। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन अ स्वीट स्पॉट, वंडरफुल। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स शुड स्टार्ट विद ट्रिपल ए और डबल ए रेटेड बॉन्ड्स। तो एक एग्जांपल है कि कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें रास्ता दिखाता है। कैसे आप देखिए, कंपनीज के नाम भी दिए गए, उनकी 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 जो है क्रिस्टल रेटिंग भी है, और बताया है कि कैसे वो आपको, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कैसे आपको हायर यील्ड मिल सकती है। सो क्रेडिट रिस्क, interest rate risk before buying corporate bonds. Credit risk refers to the possibility of a bond issuer failing to make interest payments or the principal repayments by their due date, जो आगे होगा। तो क्रेडिट रेटिंग तो सेबी एक्रेडिटेड रेटिंग एजेंसी से होता है, लेकिन वो सेफेस्ट है, और डी जो है डिफॉल्टर है।
वही बात है कि फर्स्ट टाइमर इन्वेस्टर्स शुड स्टार्ट विद हाईली रेटेड बॉन्ड दैट आर ए और डबल ए, और yield to maturity of the bond देखिए. इंटरेस्ट रेट रेफर्स टू द रिस्क टू चेंज इन द बॉन्ड प्राइसेस ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट. तो दोनों बातें हैं. वो इतना अभी बोल रहा है लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है. होल्डिंग पीरियड भी जो है अलग अलग है वो. सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स शुड गो फॉर बॉन्ड मैच्योरिंग इन 1 to 2 years वेयर दे विल गेट 9 to 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये एक एग्जांपल है. So that is how it happens. It is one of the ways of getting, I shouldn't say study, but getting a kind of a passive income. मेन स्ट्रीम भी हो सकती है. जब बात आती है इंडियन लेबर लॉज की, तो डेफिनेटली चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ, सबके साथ आप जब कंप्लाई करने की बात करते हैं, तो इन लेबर रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूट नियरली 56% ऑफ द ओवरऑल कंप्लायंस बर्डन. 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इनटू 4 कॉम्प्रेहेंसिव लेबर कोड बन जाने की बात है, वो हो चुका है. इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो कम होनी चाहिए. सो ये कॉस्ट जब कम होगी, जब कॉस्ट कम होगी, लेकिन कॉस्ट कम करके भी आप सोशल सिक्योरिटी और अलाउंसेस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करेंगे तो बात बनेगी. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सर्टेनिटी लेके आए, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फेसलेस हो, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट डिजिटल हो, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है उसके लिए ट्रेंड ऑफिसर्स हो, आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज होने चाहिए. स्टेट लॉज भी सेंट्रल लॉज के साथ कोहेशन में होने चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनकंसिस्टेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए. फाइलिंग है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है. कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप फॉर बिजनेस नहीं होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए. और जैसा मैंने कहा, डिजिटाइजेशन जो है वो होना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र में फिर सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ कंप्लायंस फॉर्म्स कंपेयर टू दोज इन हैदराबाद. तो एक मॉडल बनाइए, हैदराबाद मॉडल मान लीजिए, वो पूरे स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए. की डेफिनेशंस जो है वो क्लैरिटी के साथ होने, ताकि मिडलमैन का रोल ना रहे. और subsuming shops and establishment law, state specific shops and establishment should be integrated in the proposed जो हमारे लेबर कोड्स हैं. उसके बाद रेशनलाइजेशन अप्रोच जो है वो भी आनी चाहिए. सेक्टर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन होने चाहिए. तो ये आई थिंक मेंस के आंसर के लिए बिल्कुल फंडामेंटली रेडी है. पीटी में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तो पीटी में भी आप कुछ कर पाएंगे. वी नीड मोर सिविल इंजीनियर्स. ऑब्वियसली ये आज की बात नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पैशन, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बॉयज के साथ साथ गर्ल को भी वहाँ प्रमोट करना, उनके लिए एक राइट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, मोनोपोली को ब्रेक करना, उसको रियल स्टेट की तरह नहीं देखना. इंडिया का जो इंफ्रा, एक तरफ तो आप इंडिया अर्बन इंफ्रा क्राइसिस की बात करते हैं, यहाँ पे रोज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोज इनोग्रेट कर रहे हैं, कभी कोई पुल इनोग्रेट हो रहा है, कभी कोई हाईवे इनोग्रेट हो रहा है, और आप क्राइसिस की बात कर रहे हैं. तो पहले हमें डिसाइड करना होगा कि उसी टाइम क्या हम जवान भी हो जाएंगे डेवलप्ड नेशन के साथ साथ, उसी टाइम हम क्राइसिस में भी हो जाएंगे. उसी के साथ साथ हम तो तक्षशिला इंस्टीट्यूट के जो एक फाउंडर हैं नितिन पाई, वो क्या बताना चाहते हैं वो देखने वाली बात है. चेनाब के रिवर की आप बात भी कर दोगे, तो अब ये नहीं है कि सिर्फ चेनाब ब्रिज के होते ही अचानक से सिविल इंजीनियरिंग में लोग घुस जाएंगे. सिविल इंजीनियरिंग माथा पच्ची करनी पड़ती है, सरिया रॉड से लेकर डिजाइन से लेकर. बिकॉज आई हैव अ स्टूडेंट हु इज अ सिविल इंजीनियर, तो उसके लिए एक पैशन है, वो धीरे धीरे आता है. आप ग्रास रूट लेवल से आप प्रमोट कीजिए. सिविल इंजीनियरिंग सीट्स जो है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह नहीं है. सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच भी चाहिए. तो वही बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कभी आउट नहीं होने वाला, एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर जो कुछ बातें हैं थियोरेटिकल हैं, दे अनवांटेड है, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से 4 पॉइंट सोच के आपको लिखने चाहिए. Fiscal deficit may stay below estimate 4.2 to 4.3 of GDP. So higher than expected dividends RBI से आए हैं. PSUs की भी जो है वो भी they may provide room to maintain spending, तो इससे फर्क पड़ा. तो यही वाली बात है, सरकार को पैसा चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को मदद करनी पड़ेगी. जब तक उनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सेविंग्स नहीं होंगी, तब तक आप जो है, जो हमारे बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं वो हमारे पूरे करने में दिक्कत आएगी. तो लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. ये सब आपको पीटी के लिए पता होने चाहिए. मेंस के लिए, आप प्रीलिम्स के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या है, एफआरबीएम बिल क्या है. फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सबके डेफिनेशन हमने क्लियरली उस सीरीज में बताए, लेकिन हम उसको ओवरऑल भी अभी करके आगे लेके आ रहे हैं. सो विद दीज आइडियाज एंड थॉट्स, आई लीव इट अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द होल कोलाज ऑफ टुडेज डिस्कशन, और उसमें आप अपने आंसर राइटिंग, अपनी थिंकिंग, अपने डेली वर्क के अंदर आप कैसे और चेंजेस लेके आ पाएंगे. बिकॉज दैट इज द कोर पार्ट ऑफ आवर पेडागॉजी, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली when you are sincere, when you are putting your efforts, and you are not looking to escape here and there. Thank you very much. Wishing you all the best.